It was the biggest news in entertainment industry when Dharma Productions sold 50% of its shares or the stake to someone else, a businessman. And that was one of the biggest deal that happened in, film media industry, as you can say. If I'm not wrong, it was 500 crores. That means Dharma Productions is worth 1,000 crores. Now there were a lot of rumors why it happened, what's behind this, that industry is dying, that's why he did that. So instead of getting into all that, let's hear from Karan Johar himself. We have a clip here from Raj Shamani podcast where he talked about it. If you haven't seen the original, I'll put the link description. You can check it out there. There's a reaction or a substitute. It was a big deal. Now this was a big deal because film studio is not considered as a company, where you can really value it. But they did value Dharma Productions, and that was a big deal. That it is possible. So let's hear from him. And by the way, channel membership is live. If you like the content on top of the channel, you can become a member. Get to watch those reactions early and some memorable videos with strong reactions. To know more, click on the join button and let's check this out. आपने बहुत सारी हिट्स दी है, अभी रिसेंटली आपका भी बहुत ज़्यादा मूवीज नहीं चली, राइट? Okay. डू यू थिंक दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ It's quite direct, huh? योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मूवीज? साल में 2-3 पिक्चरें कभी नहीं चलती, कभी चलती है। ये सोशल मीडिया की वजह से यू कीप हियरिंग दिस। एक्चुअली वी हैड लास्ट ईयर, वी हैड a very strong financial year in terms of the money that the company made as a result of music overflows, as a result of profitable films for us also. लेकिन लोग हिट या फ्लॉप एक जिगरा नहीं चली लास्ट ईयर। आई थिंक that's about it. That didn't give us a profit. The reason to have Soul Stake, And that was not a bad film at all. वो बिल्कुल नहीं था कि मुझे कोई नीड थी पैसों की या ज़रूरत था। इट वॉज एक्चुअली क्योंकि मैं चाहता था कि हम बहुत जाके आगे अपने कंपनी को ग्रो करें, एक्सपैंड करें। मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन आर्म शुरू करना चाहता था, विच आई स्टार्टेड इमीडिएटली। धर्मा का डिस्ट्रीब्यूशन हमने अनाउंस किया। वी हायर्ड समवन वेरी स्ट्रॉन्ग, भूमिका तिवारी, टू हेड दैट डिवीजन। फिर मैं बहुत चाहता हूँ कि इवेंचुअली मैं अपना म्यूजिक लेबल स्टार्ट करूँ। फिर मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं बहुत सारी ऐसी फिल्में बनाऊँ वे आई फंड देम इंटायरली ऑन माई ओन, ताकि उसकी पूरी प्रॉफिटेबिलिटी हमारे पास आए। नॉर्मली क्या होता था, हमारा मॉडल क्या था, क्योंकि मैं बहुत नेसेंट हूँ राज एज अ प्रोड्यूसर। एक्चुअली मेरा सफ़र और अपूर्वा का सफ़र, हम दोनों साथ भाइयों की तरह हम ये कंपनी चलाते हैं। 15 साल का सफ़र है एक्चुअली। 2008 से मैं मल्टीपल फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये जो है ना, एक ब्रांडिंग बन गई थी, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 15 साल का ब्रांड है। 2008 to 2023 is when I produced multiple films and built Dharma Productions. खुद का ब्रांड पहले से शुरू हो गया था, बिकॉज कॉफी विद करण 2004 में आई थी। अप टू दैट पॉइंट सिर्फ मैं एक फिल्म डायरेक्ट करता था, और एक 2008 में दोस्ताना, आई लव स्टोरीज, कुर्बान, वेकअप सिड, ये सारी फिल्में शुरू हुई और यूटीवी के साथ मेरा पहला डील बना। तब उसके बाद फॉक्स स्टार के साथ एक So I think, yeah, basically what he's saying is most of his films were, like in collaboration with other producer and houses, studios. So where whatever profit you made, you shared with all of them. So when you share, even if the film does good profit, you're getting one fraction of it. So if he produces the film alone, only Dharma's movie, no other producers, all the profit he makes, it's his. Of course, you have to put in the same amount of money. More money also you have to put, but yeah, the more profit also you'll get from it. पास लेट हमारा बना। उसके बाद धर्मा बिल्ड हुई। तो आई रियलाइज कि 15 साल में, इस 15 साल में मैंने जो बनाया, इसकी इक्विटी मुझे अभी लेवरेज करनी है, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को और बढ़ाना चाहता हूँ। मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे फंडिंग की ज़रूरत ना हो, मुझे एक्चुअली दूसरे स्टूडियोज़ के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत ना पड़े, दूसरे कोलैबोरेटर्स के साथ कोलैबोरेट करने की, ताकि पूरी प्रॉफिटेबिलिटी धर्मा प्रोडक्शन को आए। क्योंकि हमारे सबसे बड़े हिट्स जो रहे हैं, दे विल ऑल हैव पार्टनर्स। एवरी बिग हिट ऑफ धर्मा प्रोडक्शन कोई ना कोई पार्टनर था हमारे साथ, क्योंकि मैं अपनी एबिलिटी पे उस फिल्म को फाइनेंस नहीं कर पाया था, क्योंकि वी वर न्यू। मैंने ये जो अभी लोग कहते हैं कि नेपोटिज्म है, ये है, वो मेरी हिस्ट्री नहीं जानते। मैंने अपने पिता से गुडविल इनहेरिट किया, पर पैसे कुछ थे नहीं। टिल कुछ होता है। पापा ने 5 फ्लॉप फिल्में दी थी उनके पहले। देव लाइन से थी। एक दुनिया में आई थी, एक फिल्म 83 दुनिया में रिलीज हुई थी। फिर 87 में मुकद्दर का फैसला फ्लॉप हुई। 1990 में अग्निपथ नहीं चली। 93 में गुमराह एवरेज टू बिलो एवरेज थी, ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। और 98 में डुप्लीकेट में रिलीज हुई और फ्लॉप हुई। मेरी फिल्म 98 उसी साल में कुछ होता है रिलीज हुई। वहाँ से धर्मा प्रोडक्शंस की शुरुआत इन अ सेंस एज अ स्ट्रॉन्ग कंपनी हुई। व्हाट आई हैड वाज माय फादर्स ब्लेसिंग्स एंड हिज बिलीफ इन मी, और उनका ट्रिमेंडस गुडविल। वो बहुत ही लव्ड थे, पर सक्सेस नहीं पाया उन्होंने।
आफ्टर 2000, आफ्टर 98 कुछ कुछ, फिर कभी खुशी, फिर कल हो ना हो, कभी अलविदा, बट तब फिर पापा पास्ट हुए इन 2003, 2004, जून 2004। उसके बाद मुझे एक्चुअली खुद ले जाना पड़ा, एंड अपूर्वा के बगैर मैं नहीं कर पाता। तो वो मेरी ज़िंदगी में आए, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे स्कूल और कॉलेज के, एंड ही लेफ्ट his entire life in London, and overnight Bijal and him moved back to Bombay. स्कूल का बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड, और फिर टुडे पार्टनर इन क्राइम। तो हमारा अपना सफ़र रहा है। एंड देन वी स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करें, क्योंकि ना मैं कुछ बिजनेस के I think the way he's telling the story, a lot of people actually don't know the story, and we, quick to jump nepotism. He had, everything in industry. He didn't do any struggle. He just came up and, he became a director and a producer, and, he got bypassed everything, and he now rules Bollywood. Like, these terms are just thrown at him just because you need a face, and, you want someone to blame, and, use that victim card. But the truth is, everyone has their own struggles. बारे में जानता था। अभी भी मेरा बिजनेस एक्यूमेन जीरो है, इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है, एक्यूमेन जीरो है। That is honest. वो अपूर्वा सब बिजनेस संभालते, मैं क्रिएटिव। एंड तब से हमारा सफ़र टिल 23 व्हेन वी बोथ रियलाइज दिस इज नाउ टाइम टू लेवरेज एंड ग्रो। ओके। और हमारे बिजनेस में टू ग्रो ऑर्गेनिकली वुड हैव बीन टेकन मी अनदर 5-7 years. आई नीडेड द फंड टू ग्रो, एंड टुडे आई हैव टू से आई एम वेरी हैप्पी विद माय पार्टनरशिप विद आदर। बहुत ही अमेजिंग इंसान है वो, अमेजिंग इंस्टिंक्ट्स है उनके, एंड आई फील अकाउंटेबल। तो आज लोग बोलते हैं कि आप जब स्टेक बदल तो क्या आप मोर रिलैक्स्ड हो गया हो, मैं अच्छी ज़्यादा हाइपर हो गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नाउ आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी ज़िंदगी में मैं अकाउंटेबल हूँ। किसी और के पैसे हैं, मुझे सक्सेस पाना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी है, अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल दिखाना है। और जिस साल के बारे में आप जिक्र कर रहे हो वो तो आया गया, वो तो हर साल ऊपर नीचे हाथ, बहुत लोगों के था, किसी का ऊपर है तो किसी का नीचे है, पर वो सालों का जो काम है, जो लेगेसी है, वो आप तो इरेज नहीं कर सकते एक साल की वजह से। It's interesting to hear that, as a company and how he looks at the studio and this and that, profitability, everything, but don't lose the creativity in, in way of that. That you need to, then again, you'll start running towards the formula. It works so that it makes more money. Then, that cycle again, you'll keep getting into. That's not true. You have to break that cycle and go into take risk and make good films. Risk, try something new, something different. you know Give a big, like, if you really want to make a lot of money, like the legacy is talking about, the films he made were very different. When they, like, even if you watch today, they have the cult, you have nostalgia about those films, they're cringe today, you may say that, but those films were big, full of heart, and they worked at that time. There was nothing like that we had seen before. So that we have to do again today. और उसी साल में अगर ब्रेक डाउन करूं, किल हमारी बहुत अप्रिशिएट हुई है। मिस्टर मिसेस माही इज अ प्रॉफिटेबल फिल्म फॉर अस, बैड न्यूज़ इज अ प्रॉफिटेबल फिल्म फॉर That is a bad film. us, our profits देख लो। जिगरा is broken even, and right now we are on the verge of producing our first पंजाबी फिल्म अकाल, और उसके बाद केसरी 2 आ रही है, और फिर धड़क 2 आ रही है। We are very excited, very bullish about the year. Is Dhadak 2 coming? So there's no low point, nothing. लो पॉइंट तो मैंने कुछ है ही विद नहीं। गॉड्स ग्रेस, एक्चुअली डेस्टिनीज ग्रेस, या माय फादर्स ब्लेसिंग्स, लो पॉइंट्स जब आते भी हैं, वो फ्लॉप नहीं चली, तो मैंने ना सक्सेस को कभी सीरियसली लिया है, और ना फेलियर को कभी मैं दिल पे लेता हूँ। आई ऑलवेज फील कि एक्चुअली फेलियर जो है ना, वो एक फाइनल रिजल्ट होता है। समटाइम्स आई लाइक फाइनल रिजल्ट्स, चाहे वो बहुत बड़ी सक्सेस हो या बहुत बड़ी फेलियर, ओके। बिकॉज दे आर रिजल्ट्स। एवरेज जो है ना, मुझे एवरेज से बहुत परेशानी होती है, जो बीच में फंस जाती है, ना इधर की ना उधर की। ब्रेक इवन नहीं चाहिए, या लॉस चाहिए, या प्रॉफिट चाहिए। मुझे रिजल्ट चाहिए। अब मुझे KFC 2 is kind of average, you can say, with, like, you expected with the brand name and KFC 2 and all of that. Even with the topic, it will cross 150, 200 at least, but it's still, I think, 80, 90 something. बता दो जहाँ मैं गलत गया हूँ, मैं एक्नॉलेज करूँगा और वहाँ से कुछ सीख के जाऊँगा आगे। मुझे नहीं लगता कभी मैंने लाइफ में अपने सक्सेस को कभी सीरियसली लिया है, अपनी पोजीशन को, अपने ब्रांडिंग को, या पावर को, या एज अ डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, कभी भी नहीं। आई ऑलवेज फील नथिंग शुड गो टू योर हेड, बिकॉज सक्सेस बहुत सीजनल चीज़ होती है।
बहुत It's true. बचपन में मैंने गम के बारे में भी, दुख के बारे में भी एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा लिया था, क्योंकि गाना है हमारी फिल्म, एक फिल्म है दोस्ती नाम की फिल्म है कि राही मनवा दुख की चिंता I've seen this क्यों movie. सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो अगर आप दुख और गम को एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लें और अपनाएं कि अंडरस्टैंड कि ये तो अपना साथी है, खुशी आएगी जाएगी लेकिन ये तो हमेशा साथ रहेगी, तो इसको अपना लो। व्हेन यू इन्वेलप एंड एम्ब्रेस योर ट्रेजेडी एंड सैडनेस, देन हैप्पीनेस इज अ ब्यूटीफुल ब्रीदर। जब आए तो आप उसे इन्वेलप कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए खुशी खुशी, लेकिन जब चले जाए तो उस बात का गम भी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली विद फेलियर आई है इसकी ये मतलब नहीं कि हर चीज़ फेल होगी, कल कुछ और सक्सेसफुल हो जाए। That's quite philosophical by the end. With this age, I think it's becoming a wiser man to, say such lines. And I've actually seen that old Dosti film we talked about. Really good film. You should check it out. I think it's on YouTube and even on Amazon Prime. But coming to the topic, right? Like as I said before, as he said, leveraging his legacy of the studio. If he doesn't if he keeps the way he was going about running the studio and one of the big studios of Bollywood, he'll take more 10 years. But with the selling 50% of the stakes, getting that money, now you can actually invest more and grow faster. As he said, talking about being a music, also taking over music, becoming a distributor also of films. So you're kind of making the company bigger. It's not just about making films. So a lot of business aspects of filmmaking also comes into that. And but again, about profits and this and that, like you have to keep challenging, you have to keep making films. And he took example of this year's film Kesari 2. I'm like, I have my own thoughts. I have shared it on the other channel in my review. But yeah, Dhadak 2, again a remake, but with these conditions and no censor board. I don't know what's happening with that film also. So let's see what goes on there. But and the journey of Dharma Productions after this, it's still too early. Let's see next 3-4 years, how this investment changes. And this also stands like like other studios also can go for the investment, get that money, and and develop more bigger projects and invest more money in filmmaking. And we can see that's maybe the future or maybe not. We'll find out soon. But what do you think? Let me know in the comments below. Next, and I will see you next time.